اور خبروں کی شروعات کریں گے عید الاضحیٰ کی خبروں کے ساتھ۔ جی ہاں ناظرین، ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ ملک میں خوشحالی کی دعائیں مانگی گئیں۔ جہاں عید کی خوشی میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی گئی، اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی کا عمل شروع ہوا۔ ملک کے گوشے گوشے میں مسلمان نماز دوگانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر مسلمانان ہند ملک قوم کی ترقی، خوشحالی، سماجی خیر سگالی، بھائی چارے کی خاص دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عید قرباں کے موقع پر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور دیگر سینئر رہنماؤں اور سرکردہ علماء دین نے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کی ہے اور ملک و ملت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے چند ریاستوں میں سیکیورٹی کو پختہ کیا گیا ہے۔ یو پی میں پولیس نے مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے کہا کہ وہ سوائے مقررہ مقامات کے کھلے میں جانوروں کو ذبح کرنے سے پرہیز کریں۔ اور پی ایم نریندر مودی نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اہل وطن کو مبارکباد دی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، عید مبارک، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ تہوار ہم سبھی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے، ساتھ ہی عالم انسانیت کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے بھی ملک کے عوام بالخصوص مسلمان بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ تہوار قربانی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سونیا گاندھی نے بھی ملک کے عوام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، عید الاضحیٰ امن و امان، ترقی اور خوشیوں کا تہوار ہے۔ اس موقع پر آپسی بھائی چارے کے فروغ پر بھی انہوں نے زور دیا۔ اور مختار عباس نقوی نے بھی ملک کے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے انسانیت کے پیغام کو فروغ دینے پر زور دیا۔ عید کی سبھی دیش واسیوں کو، پورے دنیا کے لوگوں کو بہت بہت مبارکباد اور بہت بہت شبھ کامنا۔ آج دنیا کے سامنے جو چنوتیاں ہیں، سنکٹ ہے، کنٹک ہے، ہمیں سوہارد کے ساتھ، سہیشوتا کے ساتھ اور اپنی سوہارد کی سمجھ کے ساتھ اس کو پراست کرنا چاہیے، ایک جٹ ہو کر کے پراست کرنا چاہیے۔ یہی انسانیت کا بھی سندیش ہونا چاہیے اور یہی اسلام کا بھی سندیش ہے۔ دہلی کی جامع مسجد میں بھی لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ اس خاص موقع پر ملک میں امن و امان، شانتی، خوشحالی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئی۔ جامع مسجد اور شہر کی تمام بڑی مساجد میں اس موقع پر سیکیورٹی کے پختہ بندوبست دیکھے گئے۔ نماز عید کے بعد معصوم بچوں کے چہروں پر عید کی خوشیاں دیکھتے ہی بنتی ہیں۔ ملک ہے، دنیا میں عید ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں یا پابندیاں ہے۔ ہمارا امریکہ میں بھی یعنی کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ میں، اس میں پابندیاں ہے، یعنی پہلے سے اجازت ملنے پڑتے ہیں، یہ لینے پڑتے ہیں، یہ لینے پڑتے ہیں، تو مشکل ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے جماعت عام طور پر جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں عید پڑھنے میں کہہ سکتا ہوں کہ الگ ہی ہے۔ ہندوستان کا عید جو ہوتا ہے اور امریکہ کا عید دو الگ چیز ہے۔ یہاں کا عید بہت شاندار ہے، ماشاءاللہ روحانی ہے اور ماشاءاللہ بہت دلچسپ ہے، بہت دلچسپ۔ یہ اپنے ہندوستان ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آل اوور ورلڈ سے نماز پڑھنے کے لیے عید اور بقرعید کی خاص کر ہندوستان کے اندر آتے ہیں، اور ہم تو خوش نصیب ہے کہ ہم دلی کے اندر رہ رہے ہیں اور خاص کر جامع مسجد کے علاقے کے اندر، خاص کر جامع مسجد کے ایریے کے آس پاس ہی رہتے، تو ہم تو خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہر سال ہم جامع مسجد میں آ کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور وہیں
लखनऊ में भी ईद उल अजहा की नमाज पूरे अक़ीदत व एहतराम तुस्को एहतशाम के साथ अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क में अमन सलामती के ख़ास दुआएं मांगी गई। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने अहले वतन को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। उन्होंने मुसलमानों से खुशी के साथ ईद मनाने की अपील की। इंतज़ामिया की जानिब से जारी की गई एडवाइजरी पर भी सख्ती से अमल करने की उन्होंने हिदायत दी। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं तमाम अहले वतन को बकरीद की ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ईदगाहों और मसाजिद में नमाज अदा करने के बाद मुसलमान अपने घरों में जा कर के और जो इससे पहले से जगह मुतय्यन हैं वहाँ पर जाकर अल्लाह के हुजूर में कुर्बानी पेश करता है। तो लिहाजा आज का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शानदार कुर्बानी की याद में मनाया जा रहा है। लिहाजा मैं एक बार फिर से तमाम मुसलमानों से यही अपील करता हूँ कि आज का दिन खुशी का दिन है, इसको पूरे खुशी के साथ मनाएं, अमन व अमान के साथ मनाएं। और गंगा जमनी तहजीब के गहवारे इलाहाबाद में ईद उल अजहा का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 10 जून को जुमे के एहतजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के बाद इस बार ईद उल अजहा के मौके पर पूरे शहर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी के साए में शहर की तारीखी ईदगाह में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क व मिल्लत की तामीर तरक्की खुशहाली के लिए ख़ास दुआओं का अहतमाम किया गया। साथ ही शुमाली हिंद में मानसून की बारिश के लिए ख़ास दुआएं मांगी गई। इलाहाबाद की मुश्तरका गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को कायम रखते हुए इस बार भी बाज़ बरादरान वतन ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों का पुरजोश खैर मकदम किया। बरादरान वतन की जानिब से नमाजियों को ईद उल अजहा की खास मुबारकबाद भी पेश की गई। जस्ट नमाज संपन्न हुई है, लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसके पहले जामा मस्जिद की नमाज अभी कंप्लीट हो गई है। शहर के हमारी महत्वपूर्ण मस्जिदों में नमाज संपन्न हो गई है और कुर्बानी चल रही है। कुछ मस्जिदों में नमाज 10:30 तक अभी कंप्लीट होगी, जहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉयड है। शहर में बिल्कुल अमन चैन है, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जा रहा है। हम लगातार हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और सोशल साइट्स पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ एडवर्स नहीं प्राप्त हुई है। PSA और हमारा RAF का डिप्लॉयमेंट है जगह जगह पे और हमारी QRT की टीमें खड़ी हुई हैं। हमारे गस्टेड अफसर्स और मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील हैं। और वहीं तारीखी शहर भोपाल में भी ईद उल अजहा की नमाज रिवायती अंदाज में पूरे मजहबी जोश व अकीदत के साथ अदा की गई। राजधानी भोपाल में तारीखी शाहजहानी ईदगाह के साथ बारिश के सबब शहर की 56 मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज का एहतमाम किया गया। मुसल्लियान का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी शाहजहानी ईदगाह में देखा गया। ईदगाह में शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान, सलामती और खुशहाली को लेकर खास दुआएं की गई। कोरोना की वजह से 2 साल बाद ईदगाह में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज को लेकर मुसल्लियान में खासा जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर हमारे साथी मेहताब आलम ने वहां लोगों के तासुरात जाने। साथ ही ईदगाह पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करवाई। राजधानी भोपाल में ईद उल अजहा की नमाज रवायती अंदाज में मजहबी जोश व खरोश के साथ अदा की। भोपाल की शाहजहानी ईदगाह पर मौजूद है हमारे साथ फरजाना तौहीद मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि ईद का मुबारक मौका है, किस तरह से आप लोगों ने ईद की नमाज अदा की, क्या खास दुआएं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अजहा कुर्बानी का दिन है, तो हमारे लिए आज का बहुत ही खुशी का दिन होता है। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और जो पैगाम इब्राहीमी है कि उनकी औलादें फरमाबरदार रहें माँ बाप की और अल्लाह की। माँ बाप की इताअत का पैगाम है कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और बेटे भी जो है बाप के हुक्म पर और अल्लाह के हुक्म पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। आज का दिन का यही पैगाम है कि हमारी नस्लें जो हैं अल्लाह की इबादत के लिए हर वक्त तैयार रहें और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। आपने भी ईद की नमाज अदा की, क्या खास दुआएं? साहब, मुल्क के अंदर अमन व अमान रहे। आज जो पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, अल्लाह पाक हमारी कौम को उन सभी से हिफाजत फरमाए और हमें दीन इस्लाम पे चलने वाला नेक मुसलमान बनाए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये कुर्बानी जो हम लोग दे रहे हैं आज ईद उल अज़हा के मौके पर, इसको अल्लाह पाक
कबूल फरमाए, हम लोगों को सबको हलाल रोज़ी अता फरमाए, बस यही दुआएं हैं मेरी। हलाल रोज़ी अता फरमाए। यहाँ पर जो आपने भी ईद की नमाज अदा की, शहर काजी साहब ने नमाज अदा करवाई, क्या ख़ास रहा? देखिए, जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अज़हा का जो त्यौहार वो हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, खासकर मेरे भोपाल के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शहर काजी साहब ने ही हर बार की तरह अमन, चैन, भाईचारे की दुआ की है, और जो हालात आज देश में बने हैं और जिस तरह से जो एक दूसरे में जो नफ़रत का वातावरण पैदा हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी फ़िक्र ज़ाहिर की है। और सबसे एकता भाईचारे का जो ईद उल अज़हा, जिसको हम कुर्बानी का पर्व भी कहते हैं, और जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद की कुर्बानी के लिए आगे आए थे और उसके बाद अल्लाह ने ये मौका दिया था कि जिस तरह से ये कुर्बानी की जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शहर काजी साहब ने जो अमन व अमान और भाईचारे का जो पैगाम दिया है उसको सभी में एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो। जी, बेहद खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, और 2 साल बाद ईदगाह में नमाज हुई है बकरा ईद की, और खुशी दिल से हुई है। बड़ा अच्छा लगता है कि भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है, जब आप आएँ तो आपके सरदार भाई भी आपके ऊपर फूल उड़ा रहे होते हैं, और ईदगाह पे काफ़ी एक अच्छी रौनक रहती है। और ख़ास तौर पे यहाँ से जब हम जाते हैं, जैसे पिछली ईद पे ये पैगाम था कि पेड़ लगाएं, घर से जाएं, इस ईद पे ये पैगाम है कि देखिए, कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी होती है दूसरों की खुशियों के लिए, अपनी खुशियों को कम कर देने की। अगर आज मुल्क की ज़रूरत है कि अमन व अमान, तो आप अपनी जो खुशियां हैं उसको थोड़ा सा कम कर लें, अपने से नीचे के तबके को देखें, जो कमज़ोर है, जो माली हालात पे ठीक नहीं है, आप उनकी मदद करें, उनके लिए अपने माल को कुर्बान करें, जान को कुर्बान करें, देश के लिए काम करें, और भाईचारा बनाएं। साफ़ सफाई का बहुत पाबंद रहें। ये बिल्कुल ये सामने से जो हमारे हिदायत हैं, जो हेड हैं हमारे शहर काजी साहब, उनकी तरफ से हिदायत है कि आप अपना त्यौहार मनाएं, पर अपनी खुशी किसी और की परेशानी नहीं बननी चाहिए। ये पैगाम है, और इस मीडियम से मैं आपको सबको ईद की बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज 2022 में हम आगे बढ़ें, और जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो हिंदुस्तान में एक कल्चर है जो किसी और कंट्री में नहीं रहता, हिंदू भाईचारे, हिंदू मुसलमान भाईचारे का कई कंट्री में नहीं मिलता है आपको, कि ऐसे खुले तौर पे ईद, दिवाली, होली सब मनाई जाए। हम आगे बढ़ते हैं, नफ़रतें फैलाने वाले बहुत होंगे, जो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद फिर आई है पैगाम में मोहब्बत लेकर। ये पैगाम में मोहब्बत इसी बात का है कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। जब आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करेंगे तो यकीन जाने आपकी खुशियों का रंग दोबाला हो जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और ईद उल अज़हा के मौके पर राजधानी भोपाल में सिक्योरिटी को लेकर जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। राजधानी भोपाल में ईदगाह समेत 56 मुकामात पर ईद उल अज़हा की नमाज पुरसुकून माहौल में अदा की गई। इसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में 1000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। यही नहीं, ईद उल अज़हा के खास मौके पर इज्तिमाई तौर पर शहर के 42 मुकामात पर मिसबा कायम किए गए। इस ताल्लुक से भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर के साथ शहर काजी ने खास पैगाम दिया कि 2 वर्ष के लॉकडाउन के बाद आज बकरीद पे लोगों को निकलने का मौका मिल रहा है। इसको देखते हुए ट्रैफिक जैम की स्थिति ना बने, कहीं भी लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, इसलिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन, पुलिस सभी के द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। पूरे पुलिस विभाग की ओर से मैं शहरवासियों को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि ये जो पर्व है वो अमन और शांति से मनाया जाएगा। आज हम तमामी सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज का पैगाम ये है कि हम सब जानते हैं कि कोई भी समाज मर्द, औरतों, जवानों से तश्कील पाता है। आज का पैगाम ये है कि तमाम मर्द, तमाम ख़वातीन, लेडीज़ और तमाम नौजवान मालिक की, अल्लाह की बात को मानना सीखें। जब अल्लाह की बात को माना जाता है तो अल्लाह दुनिया भी बनाता है और आखिरत भी बनाता है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत का ये पैगाम है। हम तमामी सुनने वालों से ये कहना चाहते हैं कि मालिक की, अल्लाह की बात को सीखो, अमल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों के अंदर बरकत आएगी। और साथ में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ईद को हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए, पूरे मुल्क और देश प्रदेश के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस हिदायत बना।
और मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर यूटी के मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज ईद के बाद लोगों ने जानवरों की कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू किया। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात का खास एहतमाम किया गया। श्रीनगर में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़िद किया गया। यहाँ बारिश के बावजूद सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान अमन खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने भी दरगाह में ही नमाज ईद अदा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं। सबके लिए ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली लाए, बरकतें लाए और हमें इन मुश्किलों से निकाले। पिछली ईद उल फितर थी, वो भी 2 साल बाद वैसी मनाई गई और आज की ईद उल अज़हा आपका सही कहना है 2 साल बाद ऐसी बात बनाई जाए। लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि कुछ बुनियादी एहतियात कायम रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसी तरबियत दें कि ईद का जो तकद्दुस है वो ईद का तकद्दुस बरकरार रहे और जो ईद मनाने के, ईद को ऑब्ज़र्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रुकन हैं, उनका ख्याल रखा जाए। आज ज़्यादातर अमन के लिए दुआ मांगी गई ताकि कश्मीर में अमन बरकरार रहे और यहाँ के लोगों की आबादी के लिए दुआ मांगी गई। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने आए थे, जो हम हर साल आते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज सब ने अच्छे से नमाज़ अदा की। बस थोड़ा सा बारिश की वजह से, जो इंतज़ामिया की कमी की वजह से थोड़ा सा लगता है मुसीबत लोगों को पड़ रही है। एंड इसको ख़ास तौर पे लोगों को देखना चाहिए और इंतज़ामिया को देखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दस्तगीरी करना सबको अल्लाह ताला कैसन गम तो मुसीबत, परेशानी कैसन, लाचारी कैसन, बे दिन तौफीक, असलुक हिदायत सानी। उधर आज तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए ये इक़दाम उठाया गया। जामा मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त थे। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इदारे के नज़रबंद सदर मीर वाइस मौलवी उमर फारूक की तरफ से इंतज़ामिया के इस इक़दाम की मज़म्मत की। उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न देने की मज़म्मत की। अंजुमन का कहना है कि यहाँ सुबह से ही गेट को बंद कर दिया गया था। ईदगाह श्रीनगर में भी नमाज ईद अदा करने की इजाज़त न देने की मज़म्मत की गई। और वहीं खित्ते जम्मू में भी ईद उल अज़हा काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े रूह परवर इज्तिमात देखे गए। इनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया। यहाँ नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह जम्मू में मुनक़िद हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ नमाज ईद अदा की। दुनिया भर में अमन कानून, अमन इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कई सरकर्दा शख्सियात ने भी ईदगाह जम्मू में ही नमाज अदा की। हमारी ये दुआ भी रहती है और कोशिश भी रहती है कि इसी तरीके से हम सारी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते रहेंगे और एक दूसरे के काम आते रहेंगे, हम दूसरों के दूसरे हमारे काम आते रहेंगे। हमने यहाँ पर इस मौके पर दुआ भी की और इंशाअल्लाह आइंदा भी दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली, अमन, चैन, सुकून और आफियत के साथ हम सब लोग रहें, और इसी की हम दुआ भी करते हैं और आशा भी करते हैं। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर के हर निवासी को, हर बच्चे से बुज़ुर्ग तक को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारक देता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि जम्मू कश्मीर जो है और खुशहाली की तरफ चले। हमारे बच्चे जो नौजवान हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो बुरी आदत से, ड्रग्स से और उन चीज़ों से दूर रहे और हर बच्चे से बुजुर्ग तक कंट्रीब्यूट करे जम्मू कश्मीर की खुशहाली में, जम्मू कश्मीर की तरक्की में और इस पूरे भारत के निर्माण में। अल्लाह करे कि अगली ईद इस ईद से भी बेहतर आए। हर एक धर्म का मकसद यही होता है कि वो अपने गरीब अवाम के लिए कुछ न कुछ करे। तो ये जो ईद कुर्बान है, ये जो कुर्बानी होती है, असल में ये उन गरीबों के लिए ही है जिनको इसका जो है यानी खाने को मिलता है, अच्छा मिलता है। तो अच्छी ये है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि कुर्बानी इंसान ने असल में करनी चाहिए अपने नफ्स की कुर्बानी।
जो आपका उसका अंतर मन है उसका वो साफ़ होना चाहिए, वो लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, हर धर्म के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और यही कुर्बानी है। हमारे प्रॉफिट ने ये कहा है कि अगर आपका हमसाया अगर वो भूखा है तो आप पर तब तक रोटी खानी जायज़ नहीं जब तक कि आप उसको रोटी ना दो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक से खबर है, जहां के साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह में हाजिर होकर मुसलमानों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान और कांग्रेस के दीगर मकामी लीडरान भी मौजूद रहे। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने यहाँ नमाज ईद पढ़ाई। और खबर अजमेर से है, जहां अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में लाखों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अजमेर की ईदगाह के साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मस्जिद में भी नमाज अदा की गई। दरगाह में सदली मस्जिद और शाहजहानी मस्जिद में नमाज अदा की गई। मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए यहाँ खास दुआएं मांगी गई। कोरोना में गुजरने के बाद इज्तिमाई तौर से ये जो नमाज हुई है ईद की, इससे बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में खुशी है और दुआ कर रहे हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी रखी इसको, और अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि इसके लिए हज कर दिया। और ये हज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की सुन्नत है। इसीलिए ये ईद उल ज़ुहा मनाई जाती है और क़ुरबानी दी जाती है। मगर इस क़ुरबानी का मतलब ये जानवर की क़ुरबानी नहीं है, बल्कि अपने नफ्स की क़ुरबानी भी देना है, अपने अना की, अपने नफ़रतों की क़ुरबानी देना है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आज जन्नती दरवाज़ा खोला गया। अलग सुबह खुले जन्नती दरवाजे से गुजरने वालों का इज़्दिहाम देखने लायक रहा। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये जन्नती दरवाज़ा साल में 4 बार ही खोला जाता है। आज ईद उल अजहा के मौके पर इस दरवाजे से गुजरने वालों की भीड़ को संभालने के लिए इजाफी पुलिस दस्ता तैनात किया गया। आज बाद नमाज ज़ुहर ये जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और वहीं नासिक ज़िले में ईद उल अजहा के
रोज़ शाम और रात से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद लोग ईद उल अज़हा की नमाज के लिए ईदगाहों पर बड़ी तादाद में पहुंचे। मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह पर बारिश में ही फर्जंदार तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हज़ारों उम्मत मुस्लिमीन ईदगाह में मौजूद रहे। पुलिस ने ईदगाह जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त निगरानी रखी थी, सख्त बंदोबस्त किया गया था। इसके अलावा चेकिंग मशीन भी नस्ब की गई थी। नमाज ईद की अदायगी के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बनाए गए आर्जी मिज़बाखानों में अपने अपने जानवरों को ज़बा करके सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल अज़हा का दिन था और कल रात से ही बारिश मुसलसल जारी है, बल्कि कल दिन से, और रात भर ये तज़ब्ज़ुब रहा कि मैदान में ईद की नमाज़ पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। लेकिन सुबह होते ही फ़ोन आना शुरू है माशाल्लाह, और हमको ये इत्तला मिली कि लोग अपनी एक ख़ास तादाद के अंदर ईदगाह पहुंच रहे हैं माशाल्लाह। फिर हम भी यहाँ पर पहुँचे और बारिश के अंदर ईद की नमाज़ हुई। बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है यहाँ पर जो ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने के लिए आए हैं। और कानपुर में भी नमाज ईद उल अज़हा पर खासा जोश खरोश देखा गया। पुरसुकून अंदाज में ख़ास तौर पर यहाँ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुसलमानों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। यहाँ ईदगाह पर बड़ी तादाद में लोग नमाज ईद के लिए जमा हुए थे। पुलिस की तरफ से भी यहाँ खुसूसी इंतजामात किए गए थे। आज जैसा कि आप जानते हैं कि सारे शहर में आज पूरी शिद्दत के संग ईद की नमाज अदा होगी, और आज की ये नमाज जो ये सद्भावना के लिए है, प्रेम के लिए है और शांति के लिए है। और इसी शांति और प्रेम के प्रतीक के रूप में जो कबूतर सबसे सीधा जानवर होता है, इसको पक्षी जो होता है सबसे सीधा पंछी होता है, और ये शांति और एक प्रेम का प्रतीक है। और साथ में जो तो खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।